Students, Jai Hind, Vande Mataram. First of all, a very happy Republic Day to you all. मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं. And today we start the very short type question answer of chapter 2 of economics, sectors of the Indian economy. So let us start our chapter with multiple choice questions. And question number 1 is, which of the following is true for GDP? निम्नलिखित में से कौन सा सही है किसके लिए? सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो फर्स्ट, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. तो ये आपका क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि जीडीपी के अंदर फाइनल वैल्यू को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, ना कि आपकी इंटरमीडिएट जो वैल्यू होती है उनको क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है. बी है, इट इज मेजर्ड फॉर 1 ईयर. तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है. तो आपका सी पॉइंट यहां पर सही हो जाएगा. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी includes the value of final goods and services produced within a country in a year, that is known as GDP. Question number 2 is, which of the following is not correct with the respect to the primary sector? First of all, what do you mean by primary sector? The sector which depend upon natural factor for its production, that is known as primary sector. For example, mining, agriculture, forestry, these are the various activities which are the part of primary sector. The first one is, their activities are undertaken by directly using natural resources. तो आपका true है. B है, प्राइमरी सेक्टर हैज emerged एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? केवल फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन के मैटर में देखते हैं तो सबसे पहले आप आज जो है आपका वो टर्शियरी सेक्टर आता है, फिर सेकेंडरी और फिर क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर आता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टिल योर प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन आवर कंट्री इंडिया, विच गिविंग मोर देन 50% पीपल लिवलीहुड, जो आज भी 50% से ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द टर्शरी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आती है? बैंकिंग. क्या आती है? बैंकिंग. द सेक्टर विच प्रोवाइड्स a base for the development of primary and secondary sector by giving services, that is known as tertiary sector. तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, ताकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का क्या कर सके? वह विकास कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. तो आपका आंसर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? कंट्रोल किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज द हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी वेयर एज डैश सेक्टर एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द पीपल. तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. टर्शरी सेक्टर हैज हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी वेयर एज प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द पीपल. Next question number 6, DES is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. So which sector is out of the control of government? That is unorganized sector. Next question है, the sector are classified into public and private sector on the basis of. So on the basis of ownership of enterprises, we can classify the sector into two parts: public sector which is controlled by the government, private sector which is controlled by an individual or a group of individuals. Next question, production of a commodity mostly through the natural process is the activity of which sector? Is the activity of primary sector. Next question is, GDP is the sum total of the value of. तो इसमें आएगा all final goods and services. All final goods. Your B option is right. All final goods and services are the part of your gross domestic product. Next जो आपका कैटेगरी है वो है assertion and reason based question. For question number 1 to 3, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled as reason. Select the correct answer, like both A and R true and R is the correct explanation of A. Second आपका हो जाएगा both A and R true, R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. फर्स्ट जो असर्शन है, प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर,
ये बिल्कुल ट्रू है। एट प्रेजेंट इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रीजन, इट इंक्लूड्स all those occupations which are related to man's natural environment like farming, animal rearing, mining, etc. अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, इसके पीछे ये रीजन नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, रीजन जो कह रहा है कि भाई ठीक है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, बट रीजन जो है वो असर्शन की राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि ए एंड आर राइट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ है। इट इज फैक्ट इफ वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बिटवीन 1970 to 2003, that we can see that now at present the tertiary sector is the largest contributing sector in Indian GDP. So reason, agriculture sector is facing problems of unirrigated land, increasing debts, seasonal employment etc. तो इसमें क्या आ जाएगा, both A and R true and R is the correct explanation of A, क्योंकि एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर जो डिक्लाइन होना है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो क्या है कि हमारी 40% लैंड ही अंडर इरिगेशन है, 60% इज स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून। सेकंड है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो हमारे फार्मर्स है वो क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, जिसके कारण जो उनका प्रॉफिट है वो काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मोस्टली उनकी जो इनकम होती है वो लोन को रिपे करने में चली जाती है। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही क्या कर पाती है, एम्प्लॉयमेंट दे पाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट। थर्ड असर्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज आर हाईली डिपेंडेंट। रीजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज कैन नॉट प्रोड्यूस अ गुड अनलेस दे आर एडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर। यस, both A and R right and R is the correct explanation of A, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर डेवलपमेंट अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका टर्शियरी सेक्टर है, जो क्या करता है, सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। मान लेते हैं शुगर केन को फार्मर के फील्ड से और शुगर मिल तक ले जाना है, तो आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, उसमें बैंकिंग की भी जरूरत होती है पैसों का लेन देन करने के लिए, और कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है। और मान लेते हैं शुगर मिल से शुगर को अगर मार्केट तक लेके जाना है तो भी आपके 2 से 3 जो सर्विसेज हैं, स्टोरेज है, ये सारी सर्विसेज सेक्टर जो सर्विसेज हैं जो सेक्टर के अंदर आती है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है, ये दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या बनती है, डेवलपमेंट का बेस बनती है। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर एज पर शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले आपका आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आपका कौन सा आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। Communication. Communication is the part of service sector, and service sector is also known as tertiary sector. Forestry is the part of primary sector. Manufacturing a car, it is the part of secondary sector. Next, private sector. अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है कि किसी भी तरीके से प्रॉफिट को क्या करना है, अर्न करना है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें वेलफेयर होता है, क्या होता है, वेलफेयर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, डेली वेज वर्कर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो पार्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैंक ऑफिसर। और नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर जो होता है वो होता है गवर्नमेंट ओन्स द एसेट, and the main motive behind the public sector is the social welfare. So these are the important 2 matchups of this chapter. And next category, that is the correct the following statement and rewrite. Question number 1 is the sum total of all the goods and services produced in the all sectors provides GDP. अब यहां पर फाइनल गुड्स आना चाहिए, द सम टोटल ऑफ all the final goods and services produced in the all sectors provides GDP, क्योंकि हमेशा जीडीपी के अंदर फाइनल वैल्यू को ही क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडर
employment is a situation where the worker is working but if he removed the production does not fall. अब परछन बेरोजगारी कौन सी होती है? अब अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, ये आएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक एकड़ लैंड पे केवल 2% की जरूरत होती है, लेकिन उसी एक एकड़ के ऊपर 5, तो +3 जो पर्सन है वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द वर्कर इज वर्किंग बट इफ ही रिमूव्ड द प्रोडक्शन डज नॉट फॉल. नेक्स्ट है फिलअप्स. फर्स्ट है डैश गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो इंटरमीडिएट गुड्स इसके अंदर यूज होती है फाइनल वैल्यू को, फाइनल गुड्स को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन इंडिया द मोमेंट टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन. तो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है जीडीपी को मेजरमेंट करने का, वो किसके द्वारा होता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है इन द डैश सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट. तो इसमें आ जाएगा इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. नेक्स्ट आता है रीड द इंफॉर्मेशन, राइट अ सिंगल टर्म. First, it is a sector which covers those enterprises or place of work where the terms of employment are regular and therefore people have regular work, that is known as organized sector. Next question. This activity consists of all services, occupations, transport, communication, trade, health, education. All these activities are related with which sector? The tertiary activity. Next category H, very short type questions. Question number 1 is distinguish between primary and tertiary sector. What is the difference between the primary and tertiary sector? Primary sector, this sector produces goods and services by exploiting natural resources. This sector is always depend upon natural resources for its production. Tertiary sector, this sector provides useful services to primary and secondary sector for the smooth functioning of their working. अब टर्सरी सेक्टर क्या बनता है? डेवलपमेंट का बेस बनता है, क्योंकि वो सर्विसेज ये क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या कह रहती है? काफी स्मूथ रहती है. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड? जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. और तीनों की जो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके हम क्या करते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. आइडेंटिफाई द अनएम्प्लॉयमेंट टाइप. अंडर दिस द वर्कर इज वर्किंग बट if he is removed the production does not fall, so this type of unemployment is known as disguised unemployment, and it is specially found in the primary sector and in which activity? The agriculture. Next question, state 2 objectives of Manrega. Actually, this program is also known as Right to Work in India, and it was implemented by the government of India in 2005, and it provides 100 days assured employment to each and every rural areas or rural households. So first one is all those who are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment under this scheme Manrega. This program was launched by the central government in 2005 and it was renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in 2008. If government fails in its duty to provide employment, unemployment allowances are given to the people. So these are the 2 objectives. If a person is failed to get employment after the registration with Gram Panchayat, after 15 days he or she will be able to take which allowance? Unemployment allowance from the government or from that particular institution. Next question is write 2 advantages of working in an organized sector. If you are the part of organized sector, so what are the benefits for you? First, term of employment are regular and people have assured work and people have job security. People have different facilities like health facilities and pension facilities, EPF, Employment Provident Fund. All these are the advantages for a worker of organized sector. Next question is compare public and private sector. Public sector, it is controlled and managed by the government.
and private sector, it is controlled and managed by an individual or a group of individual. So Reliance is the example of private sector, and BHEL and SAIL, Bharat Heavy Electrical Limited and Steel Authority of India Limited, are the example of public sector. Railway is the largest public sector undertaking in our country, India. Next category of questions is source, extract, case based integrated question. And extract first क्या है? Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kilogram. The mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit factory for rupees 10 per kilogram. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumer rupees 15 per packet. What is the final good? अब इसके अंदर जो फाइनल गुड है वो क्या होगी? आपकी बिस्किट होगी. क्या होगी? बिस्किट. क्योंकि व्हीट, फ्लोर, शुगर, ये सब आपके इंटरमीडिएट गुड्स है और उनका जो वैल्यू है वो किसके अंदर शामिल है? वो आपके बिस्किट के पैकेट के अंदर शामिल है. विच इज द इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आपका फ्लोर हो गया. क्या हो गया? फ्लोर. नेक्स्ट फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, तो ये आपका होगा 60 रुपीज. जो 4 पैकेट आपने बिस्किट के मैन्युफैक्चर किए हैं 15 रुपीज पर पैकेट, ये आपका क्या हो जाएगा? 60. 15 मल्टीप्लाई विद 4, तो 60 रुपीज आपका क्या हो जाता है? फाइनल वैल्यू हो जाता है. एक्सट्रैक्ट सेकंड है कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. कांता एक ऑफिस में काम करती है. उसका जो वर्किंग टाइम है वो 9:30 से 5:30 बजे तक है. सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. महीने के अंत में उसे रेगुलर सैलरी मिल रही है. इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट. शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. उसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है. कांता डज नॉट go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. जब उसने किसी भी इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन को जिसमें वो काम कर रही है उसको ज्वाइन किया था, उस समय उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था, जिसमें सब कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर थी. तो क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सट्रैक्ट से क्या बनता है? On the basis of working condition given in the source, identify the sector in which Kanta is working. So Kanta is working in which sector? In organized sector, because these are the following features of organized sector कि regular वर्क मिलता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, EPF फैसिलिटी होती है, जो प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी होती है, पेड लीव्स मिलते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिक्स टाइम होता है वर्क का. अगर एक्स्ट्रा वर्क होता है तो उसको एक्स्ट्रा क्या किया जाता है? पे किया जाता है. तो ये सब फीचर्स किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. दीज आर द 2 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Unorganized sector, the sector is not registered by the government and the terms of employment are not regular. So these are the 2 basic difference between the organized sector and unorganized sector. So dear students, today we discuss the most important very short type question answer of chapter number 2 of economics, sectors of Indian economy. You have to watch this video, like and subscribe my channel. Have a good day. Jai Hind. Vande Mataram.